السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا جو کمنگ ٹاپک ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل SDLC. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل have great role in the development of software. Okay, software for business applications introduction. ٹھیک ہے, software for business application whether it is intended for perform a single task or it is intended for the use as a company. ٹھیک ہے, مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل از ویری امپورٹنٹ فار دی امپلیمنٹیشن آف اینی پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اس میں پھر ڈفرینٹ فیزز ہیں. ٹھیک ہے, اسی سارے فیزز سے گزر کے ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر بن کے آ جاتا ہے. اس میں یہ ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا ہے نا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ از اے سسٹمیٹک اپروچ فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی سافٹ ویئر. اٹس اے سسٹمیٹک اپروچ. بائی دا یوز آف دیز ٹیکنیکس وی کین پریپیئر اے سافٹ ویئر. ہم نے ایک خاص سیکوینس آف روٹینس کو فالو کرنا ہے. اس روٹین کے لحاظ سے ہم نے ایک اسٹیپس ہر ایک اسٹیپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے 1 بائی 1 ہر ایک اسٹیپ کو کمپلیٹ کر کے پھر اگلے اسٹیپ میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ میں ہمارا ہوگا ویژن, اور ویژن کو میں پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکی ہوں اور اچھا خاصا میں ڈسکس کر چکی ہوں. اور ویژن ڈاکومنٹ پہ آپ کو جو ہے ویژن ڈاکومنٹ بنانے کا بھی میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ آپ نے ویژن ڈاکومنٹ بنانا کیسے ہے, پوری ڈسکرپشن ہے. فار دا ڈیولپمنٹ آف اینی سافٹ ویئر دا فرسٹ اسٹیج از دا ویژن ڈاکومنٹ. اور ویژن کے بارے میں کہ اس میں کسی بھی پروجیکٹ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا کرنا ہے. فوکس آن وائی, کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کس طرح. ٹھیک ہے, پھر اگلا ہے مطلب ویژن میں کیا بنانا ہے, ہم نے کس مقصد کے لیے بنانا ہے. ہم نے اس کی ساری انٹروڈکشن ویژن میں دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے ڈیفینیشن, فوکس آن وٹ, کہ ہم نے کیا بنانا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے ڈیولپمنٹ, ہاؤ, اس کی ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ سٹیج میں بھی ہم ساری جتنی بھی امپلیمنٹیشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ساری آتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, سارا جو ڈیولپمنٹ فیز ہے چاہے وہ ڈیزائن فیز ہے چاہے وہ امپلیمنٹیشن فیز ہے. پھر نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا مینٹیننس. مینٹیننس فوکس آن چینجز. بائی چینج وٹ وی مین کہ ہم اس کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی اس میں ہم چینج کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹائم بائی ٹائم کسی چیز کو ہم مینٹین رکھتے ہیں نا, اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس میں کچھ پازیٹیو چینجز لاتے ہیں, یا کوئی اس میں پرابلم ارائز ہوا ہے تو ہم اس پرابلم کو اوور کم کرتے ہیں. ڈیورنگ دیز فیزز اے نمبر آف ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ. A life cycle model is series of steps through which is product progresses. This includes the requirement phase, specification phase, design phase, implementation phase, integration phase, maintenance phase, and retirement. Software development life cycle model depict the way you organized your activities. صحیح ہے. These are a number of software development life cycle model, each having its strength and weaknesses and suitable in the different situation and project types. ٹھیک ہے, اس طرح ہم اس میں یہ ساری ڈسکشن کریں گے کہ ہم نے کس طرح ایک کام کرنا ہے. پوری ڈسکرپشن ہم اس میں دیں گے. فرسٹ اس میں ہے the list of models includes the following: build and fix model, waterfall model, rapid
प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइज्ड एंड स्टेबलाइज्ड मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, अब ये है कि कुछ मॉडल जिसमें आपके कोर्स में है, कुछ नहीं है, तो जो है वो मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब ये बिल्ड एंड फिक्स है फर्स्ट। ठीक है, कुछ जो ऊपर डिस्कस हैं सारे कोर्स में नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आई विल टीच दिस मॉडल डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। बिल्ड फर्स्ट वर्जन, पहला वर्जन प्रोजेक्ट का बनेगा, मतलब इनिशियली जो प्रोजेक्ट बनेगा और कंप्लीट होके आ जाएगा फॉर द यूजेज इन द मार्केट, पहला वर्जन इसका इम्प्लीमेंट। जिस तरह मल्टीपल वर्जन्स आते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर के, फिर उसके बाद अगला वर्जन आता है, उसके बाद अगला वर्जन आता है, 1 बाय 1 हर एक वर्जन आता है। उस अगले वर्जन की क्वालिटीज़ क्या होती है? दैट क्वालिटीज़ आर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगले वर्जन में फ़र्दर मॉडिफिकेशन और इन्हेंसमेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट वर्जन जब बिल्ड हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे मॉडिफाई अंटिल द क्लाइंट इज़ सेटिस्फाइड। अब ये मैंने बताया ना कि पहले वर्जन के बाद और मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, और मॉडिफिकेशन होगी टाइम बाय टाइम। अगर मॉडिफाई करना है, उसमें फ़र्दर चेंजेस करने हैं, मॉडिफाई अगला वर्जन आएगा। ठीक है, तो उतने टाइम तक हमने इसको मॉडिफाई करना है। मीनिंग साइक्लिक फॉर्म में ये चलेगा, मॉडिफिकेशन होती जाएगी। जब ये सेटिस्फैक्शन स्टेज पे, मतलब क्लाइंट उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आगे हमने इसमें और मॉडिफिकेशन और इन्हेंसमेंट नहीं करनी, तो उसके बाद फिर ये मेंटेनेंस फेज़ में आ जाता है। मेंटेनेंस फेज़ का मतलब ये है कि हम अपने काम को, जिस तरह आप कोई चीज़ है ना उसको मेंटेन रखना होता है, टाइम के साथ साथ उसको मेंटेन रखते हैं कि ये अपनी फंक्शनैलिटीज़ को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो हम उसको मतलब जो है उसमें कोई भी बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया उसको मेंटेन रखते हैं, कोई भी इशू आता है हम उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। इस तरह घर होता है, घर की मेंटेनेंस होती है, या और चीज़ों की मेंटेनेंस, कार की मेंटेनेंस होती है, या किसी भी हार्डवेयर की मेंटेनेंस होती है। हर एक चीज़ की मेंटेनेंस चाहिए होती है फॉर टाइम के साथ साथ हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, फिर जब ये मेंटेनेंस फेज़ हो जाता है, अगर ज़रूरत है फ़र्दर मॉडिफिकेशन की, तो हम वापस मॉडिफाई स्टेज में चले जाते हैं। अदरवाइज़ इतना हद तक काफ़ी है। फिर रिटायरमेंट मतलब ये है कि बस और इसमें फ़र्दर हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये हमारे पास अगले वर्जन्स जो है, अगला लेटेस्ट वर्जन जो है प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, फ़र्स्ट हम क्या करेंगे? फ़र्स्ट बिल्ड द फर्स्ट वर्जन, फिर मॉडिफाई until client is satisfied। फिर है मेंटेनेंस फेज़। यू नो अबाउट द मेंटेनेंस, हमने मेंटेनेंस के बारे में काफ़ी डिस्कस किया कि मेंटेनेंस किस चीज़। अब आपको मेंटेनेंस के वर्ड से भी काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो गया। अब मॉडिफिकेशन है तो ये बार बार अब चाहो तो मॉडिफाइड कर सकते हो, अगर ये मॉडिफिकेशन की नीड है। नहीं है तो बस मेंटेनेंस फेज़ पे आके वो चीज़ तो प्रिपेयर हो गई है, मगर मेंटेन रखने के लिए कुछ टाइम के बाद उसको हम मेंटेन रखते हैं। जिस तरह डिफरेंट जो है हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, या अगर आप देखिए कार की मेंटेनेंस होती है, घर की मेंटेनेंस, किसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है। ठीक है, इसमें बीच में कार है तो उसकी मेंटेनेंस, इस तरह का कलर का मसला, कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ गई, उसको मेंटेन रखने के लिए वर्कशॉप लेके जाते हैं। मेंटेनेंस इशू जब आते हैं, घर है तो घर में भी टाइम के साथ साथ कोई ना कोई वो है कलर पेंटिंग का होता है, पेंटिंग करनी होती है, कोई चीज़ ब्रेक हो गई है इस तरह, तो उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। फिर उसके बाद है रिटायरमेंट फेज़, जो कि एक चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म होके हमारे पास आ जाती है, जो कि एक फ़ाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास आ जाती है। ठीक है।